Good morning, children. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। पिछले क्लास में एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का सारा थीम हम लोगों ने देखा था और एक्सपोनेंट एंड रेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। हाउ वी बिकम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस प्रॉपरली रिलेटेड विद एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, इसको हम लोग देखेंगे। वर्कशीट 1। Worksheet 1, exponent and radicals. Exponent and radicals. Worksheet 1। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दो बेटा? वर्कशीट 1 का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दें? इन विच क्वेश्चन यू हैव डाउट्स? बच्चे मुझे शेयर करेंगे क्या बेटा? बोलिए। दोबारा समझा दे। वो थीम को बता दें बेटा। सेकंड चांस थीम को बता दें। ओके ओके। देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने बताया था। कैसे बता दिए अच्छा बेटा, क्या नहीं समझ में आता बोलिए, मैं उसको मूव कर दूंगा। इन विच क्वेश्चन यू हैव सम डाउट्स? कौन सा पॉइंट है बेटा? क्या बेटा? वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8। ठीक है। देखिए वर्कशीट 1 8। We have 15 by 341 raised to power minus 3. 15 by 341. It is given in the question that 7th root of 15 by 341 raised to power minus 3. This can be written as express each of the following in exponential form. You have to just write down the following given radical in exponential form. How you become able to evaluate it is हम लोग देखेंगे। This can be written as 15 by 341 raised to the power minus 3 whole raised to the power 1 by 7। जैसा कि हमने बताया था nth root of a raised to the power m is equal to a raised to the power m whole raised to the power 1 by n. This must be equal to a raised to the power m by n. On the basis of this way, we become able to say the same, that this one become equal to 15 by 341 whole raised to the power minus 3 into 1 by 7, that is minus 3 by 7. Have any doubt in it? नो सर। सारे बच्चों को समझ बेटा, सारे बच्चों को समझ में आया है ना? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहले ये समझ में आया ना बेटा? यस सर। इट इज योर आंसर। अगर सुनिए, इट इज योर आंसर। अगर इसको हम लोग चाहें तो पॉजिटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। अगर पावर पॉजिटिव फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे 1 by 15 by 341 होल रेज़ की पावर प्लस 3 by 7, यानी
ये 341 ऊपर चला जाएगा, 341/15 होल रेस की पावर 3/7 पॉजिटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज राइट, आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और सारे बच्चों को समझ में आया है ना? Yes, sir. Yes. After that, in which question you have some doubt? किस क्वेश्चन में डाउट है बेटा, आप पूछिए। Sir, question number 2 का 5. 2 का 5, ठीक है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 5, you have the same result. Eight by 9 raised to power 3/4. 8/9 raised to the power 3/4. This can be written as express each of the following in radicals. How we become able to represent it as in terms of radicals, इसको हम लोग देखेंगे बेटा। 8/9 raised to the power 3/4. This can be written as 8/9 whole raised to the power 3 whole raised to the power 1/4. This can be written as 4th root of 8/9 raised to the power 3. It is your answer. हमने बताया था बेटा कि n raised to the power Sir, एक बार दोबारा बता दें. nth root of a raised to the power m is equal to a raised to the power m whole raised to the power 1/n. This is equal to a raised to the power m/n. इसको हम लोग करते हैं बेटा रेडिकल। This a raised to the power m whole raised to the power 1/n. This is equal to a raised to the power m/n. Here a raised to the power m is called a radicand, and nth root of a raised to the power m is known as radical. Here 8/9 3/4 can be written as 8/9 whole raised to the power 3 whole raised to the power 1/4. In terms of radical, this is equal to 4th root of 8/9 whole cube. It is your answer. Have any doubt in it? Okay, sir. क्या बेटा? सर, एक क्वेश्चन पूछना. सही. ये वाला पॉइंट समझ में आया है ना? Yes, sir. किसी बच्चे को कहीं सुनिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ओके, पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रब कर दें, इसको रब कर देना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2 में किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है? हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल एज इन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वर्कशीट 1? वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किसी बच्चे को कोई डाउट्स है? आदर्श कुमार अपना रोल नंबर और सेक्शन लिखिए। No, sir. अर्नव राज सिंह क्लास सेक्शन और रोल नंबर लिखिए। यस, Sir, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 का 6. 2 6 we have 17/231 raised to the power -5/9. 17/231 raised to the power -5/6. This can be written as 17/231 whole raised to the power -5 whole raised to the power 1/6. So in terms of radicals, this will be equal to 6 root of 17/231 whole raised to the power -5. It is your answer.
In radical, this can be represented as 17 by 231 whole raised to the power minus 5. Have any doubt in it? Representation of radicals and radicand हम बता चुके हैं बेटा। सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो पूछिए, फिर से रिपीट करेंगे। सारे बच्चे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल साइन में लिखने आना चाहिए। यस। और भी किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट्स है? वर्कशीट 1। Have any doubt in any question in worksheet 1? नो सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में किसी बच्चे को कुछ डाउट्स है? सर क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्या? सर क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 3। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 का 3। यस सर। यस। We have सेवन बाई एक्स अस्सी पावर माइनस 5/6। हमने बताया था एक फॉर्मूला बेटा, ए रेज़ टू पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई ए रेज़ टू पावर प्लस n एंड ए रेज़ टू पावर प्लस n इज इक्वल टू 1 बाई ए रेज़ टू पावर माइनस n, ऐसा हमने बताया था। a raised to power minus n can be written as 1 by a raised to power plus n as well as a raised to power plus n is equal to 1 by a raised to power minus n। तो यहाँ लिख सकते हैं a raised to power minus n can be written as 1 by a raised to power plus n। यहाँ इसको ऊपर मूव करेंगे, a raised to power minus n को जब ऊपर मूव करेंगे then this one become equal to a raised to power plus n। So this can be written as 7 into x raised to power 5/6। It is your answer. Your question is this: express each of the following with positive exponent. Your positive exponent will be equal to 7 into x raised to power 5/6. It is your answer. Positive exponent become equal to 7 into x raised to power 5/6. Have any doubt in it? किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट है? क्या बेटा? इसको दोबारा समझा, एक बार और समझा दीजिए। देखिए फॉर्मूला होता है बेटा a रेज़ टू पावर माइनस n, इसको ऐसे समझिए x रेज़ टू पावर माइनस 1/3 can be written as 1 by x raised to power plus 1/3 and x raised to power plus 1/3 can be written as 1 by x raised to power minus 1/3। रेसिप्रोकल वैल्यू इवेल्यूएट करने पर, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, रेसिप्रोकल वैल्यू निकालने पर माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। हमने लिखा है a रेज़ टू पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई a रेज़ टू पावर प्लस n, where a रेज़ टू पावर प्लस n is reciprocal of a रेज़ टू पावर माइनस n। ओके बेटा, माइनस पावर को नहीं समझ में आ रही है? आप ऐसे देखिए, अच्छा सुनिए, किसी भी वेरिएबल पर अगर निगेटिव पावर है तो पॉजिटिव फॉर्म में लिखने के लिए उसका रेसिप्रोकल वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हमने x रेज़ टू पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू, अगर पावर पॉजिटिव फॉर्म में लिखना हो तो हो जाएगा 1 बाई एक्स का पावर प्लस 1/3, उल्टा कर देंगे। अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो उल्टा करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे
एक्स रेसिप्रोकल पावर 1/3 को अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं मैंने ठीक इसका उल्टा करते हैं 1/x का पावर लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस। अगर ये माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो उल्टा कर दिए तो प्लस हो गया, इसी तरह प्लस है तो उल्टा कर दिए तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर माइनस है पावर में -5/6, इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है इस पावर को, तो उल्टा करने का मीनिंग है कि इसको ऊपर मूव करेंगे, 1/, के फॉर्म में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 7 × 1/x⁻5/6 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 1/x⁻5/6 को पॉजिटिव फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, यानी इसको ऊपर मूव करेंगे। दिस मस्ट इक्वल टू 7 × x⁻5/6 माइनस ऊपर मूव करने पर प्लस हो जाता है। हमने लिखा है यहाँ पर a⁻1 को उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा 1/a⁻+n, a⁻+n को उल्टा लिखेंगे तो हो जाएगा 1/a⁻−n। ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आया है नहीं? हेलो, बच्चे बोल ही रहे हैं समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर। सारे बच्चों को क्या बेटा? सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं? नो सर, फिर से समझा। बहुत सिंपल सी बात है कि किसी वेरिएबल पर पावर निगेटिव है, उसका उल्टा कर देंगे तो उस वेरिएबल पर पावर पॉजिटिव हो जाएगा। कितना सिंपल बात है। x पर पावर -3 है तो अगर इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो हो जाएगा 1/x⁻+3। ये माइनस प्लस हो जाएगा कब, जब रेसिप्रोकल निकालेंगे तब। अगर x पर पावर +3 है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1/x⁻3। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है? सर ये आ गया सब, वहाँ का वो नहीं, वहां पर वही है ना। सुनो, कौन है? यहाँ पर यही है ना कि 7 / x⁻−5/6 है। इसको लिख सकते हैं 7 × 1/x⁻−5/6 लिख सकते हैं कि नहीं? इतना इतना लिख सकते हैं ना। आप जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। 1/x रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा ना। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा, और x पर पावर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया है यहाँ नीचे में माइनस है, इसको ऊपर मूव करेंगे तो प्लस हो जाएगा पावर। ओके, सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। हैव एनी डाउट इन इट? सारे बच्चों को समझ में आया है या नहीं? हेलो, नो सर। परेशानी कहाँ हो रही है बोलिए, फिर से बताएंगे इसको। क्या परेशानी हो रही है? क्या नहीं समझ में आ रहा? हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। क्या नहीं समझ में आ रहा बोलिए, तब मैं बताऊंगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/x⁻5/6 को पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये जो x पर पावर माइनस है इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है। तो नीचे वाले क्वांटिटी को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर वाले क्वांटिटी को नीचे लाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। अभी जस्ट बताए है ना,
ए पावर माइनस एन को जब नीचे लाएंगे तो ए पावर प्लस एन हो जाएगा, ए पावर प्लस एन को जब नीचे लाएंगे तो ए पावर माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पर ए पावर माइनस एन है, ए पावर माइनस एन है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए पावर प्लस एन होगा ना। जब ऊपर मूव करेंगे तो प्लस 5/6 होगा ना। Yes, sir. Yes. यही बात है। इतना सिंपल सा बात कैसे नहीं समझ में आ रही है बच्चों को? ये रूल ही है, फॉर्मूला है। इट इज योर फॉर्मूला, ए रेज़ टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाई ए रेज़ टू पावर प्लस एन, ए रेज़ टू पावर प्लस एन इज इक्वल टू 1 बाई ए रेज़ टू पावर माइनस एन। यानी प्लस अगर पावर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल में पावर निगेटिव हो जाएगा, अगर पावर निगेटिव है तो रेसिप्रोकल में पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके Okay, sir. ठीक। और कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा बच्चों को? Have any doubt in any question in worksheet 1? Have any doubt in any question in worksheet 1? वर्कशीट 1 के किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चा को डाउट्स है? If you have any doubt in any question, you must say to me about your doubt. किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट्स है? सर कंपाउंड क्या बेटा? सर कंपाउंड इंटरेस्ट का बताइएगा। नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स को हम मूव कर रहे हैं। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल फिनिश करने के बाद दूसरे टॉपिक्स पर आएंगे। हम लोगों को कंसेक्यूटिव में पढ़ना चाहिए। सिलेबस सारे बच्चों का इससे भी मूव होना चाहिए, इसलिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल को पढ़ाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें आप देख लीजिए कि वर्कशीट 1 के किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है तो बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। ठीक है ना? Sir, worksheet 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का कोड। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का कोड। हाँ ठीक है, देखिए 3 का 4। Worksheet 1, 3 and 3, 4. We have x raised to power minus 3 whole raised to power 4. According to power rule हमने बताया है x raised to power m whole raised to power n is equal to x raised to power m into n। ऐसा पावर रूल के थ्रू हमने बताया था। हमने ऐसा बताया था कि a raised to power m whole raised to power n equal to a raised to power m into n। This is called power rule। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने बताया था। आप इसको फॉलो कीजिए या इसको कीजिए, बोथ आर सेम, ये दोनों एक ही चीज है। इसको ऐसा लिख सकते हैं x raised to power minus 3 into 4। This will be equal to x raised to power minus 12। This must be equal to 1 by x raised to power plus 12। It is your answer। चूंकि क्वेश्चन में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, योर एक्सपोनेंट मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंट को, इसलिए हमने इसका रेसिप्रोकल फॉर्म निकाला है। योर क्वेश्चन इट इज x raised to power minus 3
whole raised to the power 4. This can be written as x raised to the power minus 3 into 4. This is equal to x raised to the power minus 12. This is equal to x raised to the power minus 12 can be written as 1 by x raised to the power plus 12. Because we have to express the given numbers as in terms of positive aspects. Your x raised to the power minus 12 can be written as 1 by x raised to the power plus 12. It is your answer. Have any doubt in it? No, sir. किसी बच्चा को कहीं कुछ डाउट्स है? No, sir. ठीक है, और भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट्स है तो पूछिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक को मूव कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक को मूव करें? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, इसको रब करना है। Laws of rational exponents. Laws of rational exponents. Laws of rational exponents. First law is this: if x is any rational number and n be a rational exponent, if x is any rational number and n be a rational exponent, and be a rational exponents, then we have x raised to the power a into x raised to the power b equal to x raised to the power a plus b. As for example, x raised to the power 3 into x raised to the power 4 will be equal to x raised to the power 3 plus 4. This must be equal to x raised to the power 7. Yani x raised to the power 3 into x raised to the power 4 will be equal to x raised to the power 7. In case of multiplication, if bases are same, then powers must be added together. देखिए, in multiplication x raised to the power 3 into x raised to the power 4 will be equal to x raised to the power 3 plus 4, that is x raised to the power 7. In case of multiplication, if bases are same, then powers must be added together. First rule is this. Second one is, Sir, board छोटा हो गया. बोर्ड छोटा नहीं है, देखिए Sir, zoom कर दीजिए. क्या बेटा, सर थोड़ा करीब ले जाइए। क्या बेटा, कैमरा थोड़ा, यस सर हो गया। हो गया, ठीक है, Sir, हो गया. यस सर। ठीक है। सेकंड देखिए, इफ एक्स बी एनी रेशनल नंबर, सेकंड वन इज, इसको रब कर दो बेटा, इसको रब कर देना, इसको रब कर देना। यस सर। Yes, sir. If second rule is this, if rational exponent को लिखेंगे, if x be any rational number, x be any rational number and x is greater than 0,
A and B are rational exponents. Here A and B are rational exponents. Then we have x raised to power A divided by x raised to power B is equal to x raised to power A minus B. This is your second law. Third law it is, if x is a rational number, if x is a rational number, this is your third law, and x is greater than 0, x is greater than 0 and A, B are rational exponents, then we have x raised to power A whole raised to power B is equal to x raised to power A into B. X raised to power A into B. देखिए बेटा, थर्ड रूल इट इज, if x is a rational number and here x is greater than 0 and a, b are rational exponents, then we have x a whole raised to power b is equal to x raised to power ab. This must be equal to x raised to power b. This ab can be written as x raised to power b whole raised to power a. It is your answer. X raised to power ab is equal to x raised to power b whole raised to power a. Have any doubt in it? कहीं कुछ डाउट्स है? No, sir. This is sir. your प्रॉपर्टी नंबर 3. देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5. इसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे, इसको रब कर देना. प्रॉपर्टी नंबर 4,